Dr. Naila, is Islam and feminism, are they like oxymorons? अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पे एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि हज़रत खदीजा herself was a very empowered woman. She had a business and she was the first employer who employed Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, और उन्होंने उनको पे भी देती थी, और he was mainly looking after the business, and then she was like, उन दोनों का आपस में एज का भी बहुत डिफरेंस था, बड़ी थी वो हजूर से, और फिर भी उनकी आपस में शादी भी हो गई. तो मेरा ख्याल में ये एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिसको हम भूल के हम बात करते हैं कि नहीं जी, औरत की एक्चुअली, और मुसलमान औरत की स्पेशली डेफिनेशन यही है कि वो हर चीज को हाँ कहती है, वो यस कहती है, वो अपना सर झुका देती है. उसका काम जो है अपने शौहर का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना है. अब शादी हो जाती है तो अपना करियर आराम से छोड़ देना है, दिमाग जो है उसको केटर ना करे. शी जस्ट नीड्स टू cater to the needs of her kids, her parents, her in-laws, her father, her brother, her husband. So mainly she is a ploy who is kind of objectified into this particular mode of objectivity where she is supposed to do what men say. So इस्लामिक फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इस्लामिक फेमिनिज्म में रेजिस्टेंस का आइडिया जो है वो कहाँ से आया. अब बहुत सारी मुसलमान औरतें हैं who are doing a lot of Quranic exegesis, जिसको हम कहते हैं हदीस के बारे में उसके ट्रेस करना, ओरिजिन्स क्या हैं, फिर कुरान के बारे में पढ़ना कि कुरान में औरत के राइट्स के बारे में क्या कहा गया है. अब हमारी हिस्ट्री जो है, it's been very it's kind of usurped as well, in the sense that Quranic interpretations have mostly been done by men in our societies, and women have been kind of pushed back from this territory where they could interpret Quran. So सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस्लामिक फेमिनिज्म में मुझे लगती है वो ये है कि औरत ने अब कुरान को ओन किया है और उस टेरिटरी को ब्रोच किया है, और कुरान को पढ़ के दे हैव ट्राइड टू come up with a lot of gender inclusive interpretations of Quran, where they're looking at, okay, Allah Ta'ala ने क्या कहा, and they're engaging with the religion and with the superpower जो हमारा जो एक खुदा की एंटिटी है, जो अल्लाह की एंटिटी है, उसके साथ खुद एंगेज करने की कोशिश की है. इनमें कुछ नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं. फॉर एग्जांपल आमना वदूद, who is coming up with a lot of Quranic exegesis. उनकी बहुत सारी बातें बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं, मगर वो लिखे जा रही हैं, और वो पहली खातून है जिन्होंने बहुत एक लिंग्विस्टिकली कुरान को पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशंस की हैं. और फिर फातिमा मनीसी जो कि who has gone back to the traditions of अहादीस, और उन्होंने बहुत सी अहादीस के बारे में पढ़ा और उनके बारे में रिसर्च की, और she came up with this notion कि बहुत सारी अहादीस हम जो रेफर करते हैं और जिनको बार बार रिपीट करते हैं वो एक्चुअली उनका ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो बस हम उनको दोहराते चले जाते हैं सिर्फ अहादीस कह के. और चूंकि हम एक आम मुसलमान की तो इतनी रिसर्च होती भी नहीं है इस्लाम की, so we keep on repeating them until they become a discourse, a very usual discourse in the society. For instance, she talks about this hadith जिसमें कि जी कहा जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दफ़ा कि जिस कौम को एक औरत रूल करेगी वो तो तबाही के दहाने पे, that will go to ruins. And if you read the books and the memoirs which have been written by Benazir Bhutto, she has one memoir, तो she has quoted कि कैसे उनके खिलाफ की हदीस इस्तेमाल की गई थी when she was fighting for the position of for the leadership of the country. So Fatima Marnisi has gone back to that tradition, and she after this whole research she said that ये एक ज़ईफ़ हदीस है, इसका tradition कोई बहुत authentic नहीं है. So this is this version of Islamic feminism where women are coming up and they are reclaiming this whole area of religion. They're saying we want to enter this arena which was prohibited for us, which was seen only as a performance for us,
And now not only we will perform, but we will go into the depths of it to see what is the truth and what are the untruths and what is being fed to us altogether. And we will ourselves read the authentic books, and then हम देखेंगे कि इस्लाम ने हमारे बारे में क्या कहा है और क्या हुक्म है और क्या हकूक है हमारे. सो एक ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का एरिया है. रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज हैं जो कि औरत फॉलो कर रही है कि क्या हमें कहना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे हकूक हैं. वेस्ट में स्पेशली इस्लामिक फेमिनिज्म का एक बड़ा रिसर्जेंस है जहाँ पे कि औरतें कहती हैं कि जी हमारे लिए रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए हमारे राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वी आर गोइंग टू मर्ज देम टुगेदर टू लेट यू नो दैट आवर रिलीजन इज सेइंग द सेम थिंग्स दैट योर डिस्कोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर सेइंग. और दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है उनमें दोनों में एक्चुअली. सो आप जो हमें कहते हैं कि वी वांट टू सेव यू through the human rights discourses, you are not actually saving us. These are the rights that were given to us by our religion. However, they were kind of hijacked through patriarchy. However, we are going to re-own that area and define our own feminism through our own way of religiosity and the universal discourses of human rights, which are actually one and the same thing for them.